Good evening, everyone. Wish you all a very happy Doctors' Day. So the theme for Doctors' Day this year is Behind the Mask, Caring for Caregivers. So on the occasion of National Doctors' Day, pertaining to this theme, we planned a CME. The topic of the CME today is Health and Wealth Management for Physicians. So the panelists for today are Dr. Rajendra Srivastava. He is Professor Radio Diagnosis at SGRR Institute of Medical Science. He also holds a postgraduate diploma in financial management. And our second panelist for the day is Dr. Gaurav Agarwal, who is our senior medical legal expert and Rajyog meditation practitioner. And the third panelist for the evening is Mrs. Nupur Gupta, who is a senior nutritionist and lifestyle therapist. This talk will be moderated by Dr. Pankaj Nand Chaudhary, our President TDPA. And now I request Dr. Pankaj to go ahead with the session. So thank you, Swati, and I think it's a great day, Doctors' Day, and theme is how do we heal our healers, right? So we are talking about our patients, but we don't talk about ourselves. So the theme today is the financial health, the physical health, and the mental health. And Dr. Gaurav Agarwal, I'm seeing you, and you are always full of energy, boss. Thank you. So very good, and ये energy चाहिए हम लोग को भी. How we should motivate, us actually to deal with stress. And in COVID times, we have all seen that how much stress that we faced. Lot of stress is there. Few lives have also been lost. So definitely we should care of ourselves. And definitely we are receiving Doctors' Day messages from the patients as well, from colleagues as well. But it's good that we should actually talk of us as a physician forum. I always feel that we should talk our health. So जो हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई फाइनेंशियल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट, राइट? ऑल हेल्थ आर इम्पोर्टेंट. And Dr. Rajendra Srivastava, I welcome you to the Physician Forum. And he's a very good friend and in fact batchmate of our 89 batch Kanpur, GSU Medical College. He has a passion about this financial health, right? So he is not a professional person. He is a passion. So he has done a lot of courses in the financial aspect of the wealth. He is having his YouTube channel and he teach a lot of medical students, doctors, public at large, without any monetary benefit, right? This is very important. I know that बिना किसी आप किसी फल के आप सेवा करते हो, and I think you are a true doctor. And Doctors' Day पे आप हमारे साथ हो. I think it's a very privilege for us that you are here with us. And ये बोलते हैं भाई हम ये काम करेंगे तो हमें ये हमारा कुछ मतलब होना चाहिए. बहुत है मेरे पास फाइनेंशियल स्कीम आती है कि डॉक्टर पंकज आप ईडी पे सब कुछ करा दो हमारा. I can join some. I can have some clients. So I think we are not clients actually. We are doctors and we are not friends. So if a doctor advice, I think that's more important. That how we should manage. So Dr. Rajendra, hand over to you, and you can start. You can have your PPT as well. And if you can't, then definitely we can have one-to-one question also. If anybody has things that they can put in the chat box so that we can answer them. So what do you, Dr. Rajendra? And I think it's a very interesting session. थैंक यू पंकज, कुछ ज्यादा तारीफ कर दी. ये शेयरिंग का वो ऑप्शन नहीं है अवेलेबल है इसमें. कौन मैनेज कर? हाँ शंभू आप उसको दे दो, एक शेयरिंग का दे दो उनको. जी सर. आप इनको बना दो होस्ट. शेयरिंग के राइट्स देने हैं आपको, को होस्ट बना दिए. जी सर. आप होस्ट बना दोगे तो वो शेयर कर सकते हैं. ठीक है, कर दिए सर, कर दिए. हाँ आप होस्ट हो. ठीक है राजेंद्र. थैंक यू. So my screen is visible.
Yeah, है ना, उसका फुल स्क्रीन it's कर लो आप, visible. उसको फुल स्क्रीन कर लो, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन ही है। आपको तो काफी वैसे आ रही है स्लाइड्स, मतलब पैचेस पैचेस में। एक सेकंड, हाँ You, आई विल शेयर अगेन। या इज इट ओके नाउ? yes. Okay, thank you. So wish you all a very happy Doctor's Day, and thanks Pankaj for inviting me. So because we have limited time, so I will go a little bit fast. There you go, there are notebook. So basically we are talking about wealth management for doctors, and I am not a SEBI registered investment advisor. Whatever I am talking is for educational purpose only. So for me, the wealth is continuous source of passive income. You should not work for it, and this passive income should be more than what you need, and you should have time and health to enjoy it. Otherwise you are not wealthy. So I assume that you have emergency fund of 6 month living expenses, insurance, life insurance you have, medical insurance you have, and indemnity insurance you have, and you are loan free. Then only you should call yourself wealthy. So where to invest? Best investment is to invest in your self only. अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो स्किल्स है उसी ने आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। और आपने हेल्थ में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप हेल्थी रहेंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और उस पैसे को एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस पे ध्यान दीजिए, वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा बजाय इसके पीछे भागने के कि गोल्ड में इन्वेस्ट करूं कि शेयर में इन्वेस्ट करूं। आजकल रिलेशनशिप इश्यूज काफी कॉमन हो गए हैं, और अगर रिलेशनशिप खराब है तो आपके पैसे का बड़ा हिस्सा ऐसे ही जा सकता है और आप उसको एंजॉय भी नहीं करेंगे। एंड फोर्थ इज सोसाइटी एंड कंट्री। हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, जमीन खरीद लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, अगर कंट्री सेफ नहीं है तो हम सेफ नहीं है और ये सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज कम आउट एंड मेक सम चेंजेस इन सोसाइटी फॉर पॉजिटिव। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? फिक्स रिटर्न आप सबको मालूम है, बैंक, पोस्ट ऑफिस स्कीम, बॉन्ड्स, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं वेरिएबल रिटर्न प्रोडक्ट्स की, जिसमें 1 लाख के 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 लाख के 0 भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन थिंग इज शेयर्स, सेकेंड इज रियल एस्टेट, थर्ड इज गोल्ड और सिल्वर कमोडिटीज। तो पैसा कैसे ग्रो होता है इन्वेस्टिंग में? एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन, उसका प्राइस बढ़ता है, चाहे आप गोल्ड लो, चाहे रियल एस्टेट, चाहे शेयर्स। फिर उसमें सेकेंडरी बेनिफिट होता है, जैसे बैंक एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, रियल एस्टेट आप रेंट पर दे सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितना आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो जो बैंक प्रोडक्ट्स हैं या पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ होते हैं, और लेकिन वो इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देते हैं, महंगाई से कम होता है, तो एक्चुअली आपका निगेटिव होता है रिटर्न। फिर जो गोल्ड रियल एस्टेट इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने में और ज़्यादा रिटर्न मिलता है। फिर उसके बाद ये हाईली रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर ऑप्शन, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये सारे बहुत रिस्की हैं। तो लोग कि कितना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन होता है लोगों का। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आप इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि पीपीएफ में 14% तक रिटर्न मिलता था, लेकिन उस टाइम महंगाई भी 13-14% थी। तो अगर आज की डेट में 8% जो भी आपको पीपीएफ में रिटर्न मिल रहा है, आप उसको मोटा मोटा मान लीजिए कि ये इन्फ्लेशन का रेट है। उससे आपको 4% ज़्यादा मिल रहा है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 18% है तो एक्सीलेंट है, और 24% आप पर एनम कंटिन्यूसली आप हर साल जनरेट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा जनरेट कर रहे हैं। तो आप बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड ग्रोथ के लिए नहीं है, बहुत एक्सपोनेंशियली गोल्ड कभी नहीं बढ़ता। इस साल में 35% बढ़ा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लेकिन ये यूजली आपको महंगाई से ज़्यादा ही रखता है, महंगाई से ज़्यादा रिटर्न रहता है। और शॉर्ट टर्म में इसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, नीचे भी जा सकता है। जैसे गोल्ड का चार्ट है,
तो अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2020 से लेके फेब 24 तक गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा, 4 साल तक। उसके बाद एकदम से 1 साल में लगभग 35% बढ़ गया। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया अभी। तो अब हमारे पास ऑप्शन मिलता है डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड ईटीएफ जिनके पास भी डीमैट है, जो शेयर्स बाई करते हैं, वो उसमें से गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। अब गोल्ड कुछ भी आप खरीदेंगे, जब भी आप बेचेंगे आपको उस पर टैक्स लगेगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगी। जो फिजिकल गोल्ड होता है, ज्वेलरी, उसको कंज्यूमर आइटम समझे, पहने, खरीदें, गिफ्ट करें, बट उसको इन्वेस्टमेंट मत माने, क्योंकि उसमें से 20-30% तो डायरेक्टली मेकिंग और सेलिंग चार्जेस निकल जाते हैं। फिजिकल गोल्ड जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, उसमें चार्जेस, मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। फिर आते हैं रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट में लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो लोग पॉलिटिकल विंग में हैं या जो आईएएस और डीएम और इन सब के कांटेक्ट में है, जिनको ये पता है कि शहर में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कौन सी रोड चौड़ी होनी है, कहाँ पे ब्रिज आना है, कहाँ पे बस अड्डा बनने वाला है, वो अगर आपको पहले से पता है तो आपको डर्ट चीप प्राइस पे प्रॉपर्टी मिलेगी और उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। हम लोग अभी तक जब प्रॉपर्टी देखते हैं तब तक वो ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुके होते हैं, तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी में हो सकता है मैं लेने जाऊं तो मुझे 1 करोड़ की बोले, आप लेने जाएं तो आपको 90 लाख की बोले या 1 करोड़ 10 लाख की बोले, तो कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसलिए आपको खुद का अपना एक कॉमन सेंस होना चाहिए, कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी का रेट क्या है। मेरी समझ में लैंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, फॉलोड बाय हाउस, फॉलोड बाय फ्लैट। क्योंकि लैंड को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्लैट एकदम, अगर 3 बेडरूम है तो 3 ही बेडरूम है। लैंड में अगर आप 3 बेडरूम नीचे बनाते हो तो 4 फ्लोर अलाउड है, तो 12 बेडरूम हो गए। रियल एस्टेट सबको पता है कि रियल एस्टेट ही रियल है एंड गोल्ड रियल है। बाकी जो हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है किसी का, वो सब नंबर्स हैं। अगर इंटरनेट चला गया तो वो जीरो है, या कहीं हैक हो गया तो जीरो है। बट रियल एस्टेट रियल है। और रियल एस्टेट में एक बड़ा एडवांटेज है कि आप लीवरेज ले सकते हैं। लीवरेज का मतलब, आप बैंक, आपके पास 20 लाख हैं, आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको आपका आईटीआर देखेगा और आपको लोन दे देगा। लेकिन मैं बैंक को बोलूं कि मुझे 1 करोड़ के शेयर खरीदने हैं या गोल्ड खरीदना है, तो बैंक लोन नहीं देगा। फिर इसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपने लैंड लिया, उसकी प्लॉटिंग करके बेची, या उसमें कुछ और अच्छा बना दिया, या आपने पुराना घर लिया, उसको मॉडिफाई करके रिनोवेट करके बेच दिया। तो इस तरह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उससे आप रेट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी बेनिफिट आप सबको पता ही है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऑप्शन है जहाँ 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने होते हैं, बट इंडिया में अभी बहुत डेवलप नहीं है और बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी नहीं आ रहे। डिसएडवांटेज सबको पता है कि हाई इनिशियल कैपिटल। अगर मुझे गोल्ड खरीदना है या शेयर खरीदना है, मैं 500 रुपए से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जो लैंड खरीदनी है, हाउस खरीदना है, 50 लाख 1 करोड़ तो मिनिमम चाहिए ही। फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है। मान लीजिए गोल्ड मुझे खरीदना है और आपको खरीदना है, दोनों के लिए रेट सेम होगा, या कोई शेयर एचडीएफसी का शेयर खरीदना है, दोनों के लिए सेम रेट होगा। बट रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे है, फिर कैश ट्रांजैक्शन है, ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है। टैक्स हर साल गवर्नमेंट बढ़ाते जा रही है, और रेंटल यील्ड जो है वो एफडी से भी कम है। और अगर आप फ्लैट या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अटक गया प्रोजेक्ट, तो फिर 7-8 साल 10 साल कुछ भी लग सकते हैं। फिर आते हैं इक्विटी शेयर्स, जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है। तो शेयर मार्केट क्यों ज़्यादा रिटर्न देना है? क्योंकि ये एजम्पशन है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। अगर आप इस पर बिलीव करते हैं तभी आप शेयर में इन्वेस्ट करें, अन्यथा ना करें। और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये बिलीव है कि ये
अच्छी कंपनी है और आगे प्रोग्रेस करेगी। तो शेयर खरीदने के तरीके क्या हैं? डायरेक्टली आप खुद एनालिसिस करिए, जो भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदिए, या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू खरीदिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सारे जो हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर्स में आप सबको पता है हाई रिटर्न पोटेंशियल है। अगर चल गया तो 1 लाख के 1 करोड़ भी हो सकते हैं 10 साल में, और जीरो भी हो सकते हैं। डिविडेंड इनकम है, जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो एनुअल डिविडेंड देती हैं, और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो इसी डिविडेंड के बेसिस पे करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन है, रियल एस्टेट में मान लीजिए आप खरीदते हैं तो आप एक ही शहर में हैं, उसी मोहल्ले के आसपास कुछ आप खरीदेंगे। लेकिन शेयर्स में क्या है, आप आईटी इंडस्ट्री में भी लगा सकते हो, बैंकिंग में भी लगा सकते हो, फार्मा में भी लगा सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी में भी पैसा लगा सकते हो, बहुत छोटी कंपनी में लगा सकते हो, इंडियन कंपनी में लगा सकते हो, यूएसए की कंपनी, यूरोप की कंपनी, किसी भी जगह आप पैसे लगा सकते हो। फिर ईज ऑफ एक्सेस है, आप अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो। डिसएडवांटेज है वोलेटिलिटी है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए कि कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब पैसे निकालने हैं, कब वेट करना है, और रिटर्न गारंटीड नहीं होते। कैपिटल लॉस हो सकता है, पूरा पूरा पैसा जा सकता है। कुछ फ्रॉडलेंट कंपनीज होती है, स्पेशली आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है पैसा पूरा का पूरा डूब जाए, तो उसमें इमोशनल स्ट्रेस काफी होता है। तो इसीलिए ऑप्शन निकला है म्यूचुअल फंड का, जहाँ एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो डिसाइड करता है किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, किस में कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब बेचना है, कब खरीदना है। और एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप हर महीने एक पैसा फिक्स अमाउंट 5 तारीख को 10,000 रुपये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में लग जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। इससे आपको डाइवर्सिफाई होता है कि आप शेयर्स में क्या होता है, आपको एक कोई शेयर अच्छा लगा तो आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है 5 to 7.5% कुछ, उससे ज़्यादा पैसा वो किसी एक पर्टिकुलर शेयर में नहीं लगाते हैं। अगर आपने 100 रुपये दिए हैं तो उनको टीसीएस अच्छी भी लग रही है तो टीसीएस में 7.5 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगा सकते। और रिस्क, चूंकि ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो शेयर में रिस्क है, इवन डेट फंड में भी रिस्क होता है कि पैसे नीचे जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी स्कीम मतलब शेयर में इन्वेस्ट करना, डेट मतलब बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, दोनों का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड। कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड आते हैं, रिटायरमेंट, चिल्ड्रन फंड, ये सब आपको नहीं लेने हैं। इंडेक्स फंड जो है मैं इसको प्रेफर करता हूँ, ये सबसे सिंपल है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, आप अपने आप कर सकते हो। और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते तो 36 टाइप्स ऑफ फंड है, बट ये कॉमन थीम है। दूसरा तरीका है कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लीजिए। यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेयर्स खरीदता और बेचता है। म्यूचुअल फंड में एक ग्रॉस वो फंड मैनेजर पूरे पूल को डिसाइड करता है, वो अपने आप डिसाइड करता है कौन से शेयर लेने हैं, कौन से नहीं लेने। यहाँ पर पीएमएस में आपको 50 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें डिस्क्रिशनरी होता है कि वो खुद डिसाइड करेगा मैनेजर। नॉन डिस्क्रिशनरी आप बता सकते हो कि भाई रिलायंस का शेयर ले लो और इसका शेयर ले लो, ये निकाल दो, या वो केवल एडवाइजरी कर सकता है कि ये शेयर्स अच्छे हैं आप ले लो, आप अपने आप बाई सेल कर सकते हो। फीस इनकी थोड़ी हाई होती है और रिस्क इसमें भी रहेगा क्योंकि ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक और ऑप्शन है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो और ज़्यादा रिस्की है। ये भी एक्सपर्ट ही मैनेज करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 करोड़ रुपए लगता है, और इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, जो कि रिस्की है, चली तो अच्छी चली, नहीं चली तो जीरो। कैटेगरी 3 होता है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पैसे इन्वेस्ट करता है, तो ये काफ़ी रिस्की होता है। तो अगर रिटर्न दिया तो हो सकता है बहुत हाई रिटर्न दे, और डूबा तो हो सकता है पूरा पैसा डूब जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और AIF तीनों जो है वो 15% रिटर्न दे रहे हैं।
मैनेजमेंट फीस यूजली 2% होती है AIF और PMS की, 2 लाख रुपए फीस में चले गए। म्यूचुअल फंड यूजली ऑन एन एवरेज 0.5 to 2.5% होती है, एवरेज 1.5 मान लेते हैं। परफॉर्मेंस फीस क्या होती है कि मान लीजिए AIF ने बोला कि 10% तो रिटर्न मिलेगा आपको, 10% के ऊपर जो भी रिटर्न मिलेगा उसमें से 20% हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होगा। तो मान लीजिए 1 लाख की प्रॉफिट शेयरिंग हुई, और इन दोनों पे GST भी लगता है क्योंकि ये लग्जरी प्रोडक्ट माने जाते हैं। 18% ये लगा, तो अगर आप निकालेंगे तो नेट इफेक्टिव रिटर्न म्यूचुअल फंड का ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आपको AIF या PMS एटलीस्ट 20% या उससे ऊपर रिटर्न दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, तब तो इनमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज म्यूचुअल फंड मेरी समझ में अच्छा ऑप्शन है। अगर आप खुद चाहते हैं शेयर मार्केट में अपने आप से इन्वेस्ट करना, करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये याद रखें कि वोलेटाइल होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हमेशा सही नहीं होता। कई बार हाई रिस्क जो होता है वो लो रिवॉर्ड के साथ आता है, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो उसका दूसरा ऑप्शन है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, SIP, और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। तो जो भी पैसा आप लगा रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में चाहे शेयर्स में, तो जो भी आपका गोल, मान लीजिए 2030 में बच्चे की एजुकेशन होनी है, तो आप 2027 से थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकालना शुरू कर दें, क्योंकि 2030 में अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपको बहुत लॉस होगा और आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। एक इजी इफेक्टिव मेथड है, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। आप 20% सब में लगा दीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड किसी भी बड़ी कंपनी का, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, और कोई इंटरनेशनल इंडेक्स फंड ले लीजिए। तो निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी, नेक्स्ट 50 मतलब नेक्स्ट 50 इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा लग गया। मिड कैप इंडेक्स जो होता है वो 250 तक होता है, तो आपका टोटल 250 जो इंडिया की टॉप कंपनी है उसमें पैसा लग गया। और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगाएं तो ये हाई प्रॉफिट मेकिंग हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और इंटरनेशनल इंडेक्स फंड की कभी कभी जो है अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कभी चाइनीज की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो उसका आपको प्रॉफिट मिलता रहे। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले तो अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, और कितना टाइम बचा है, क्या आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब है कंपनी डूब गई या वो स्कीम बंद हो गई। गवर्नमेंट कंट्रोल में होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए। मान लीजिए आप गए कि 1 करोड़ बच्चे की फीस भरनी है, विदेश जा रहा है, और वो बोल रहे हैं नहीं जी हम तो 20 लाख दे पाएंगे, 20 लाख अगले हफ्ते, ऐसे करके 2 महीने में आपको देंगे। तो लिक्विडिटी होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी तो इसमें रहती है। आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करा और वो घट के 90 लाख हो गया, अब आपको एंजाइना होने लगे, एसिडिटी होने लगे, नींद ना आए, तो इसका मतलब आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है, तो आपको बहुत हाई रिस्की प्रोडक्ट में नहीं लगाना चाहिए। और आपका डिसिप्लिन क्या है, आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट वोलेटाइल है तो आप शांत बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी हाई होगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी हमने देखा EIF और PMS में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और टैक्सेस आपको चेक करने, उसके बाद आपको डिसाइड करना है किस इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना है। कोई भी बंदा आपके पास प्रोडक्ट लेके आता है कि सर इसमें पैसे लगाइए आपके पैसे बढ़ जाएंगे, साथ में आपको 50 लाख का इंश्योरेंस है, तो इसका मतलब इंश्योरेंस की कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में से निकलेगी और आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन और टैक्सेस हमारा बहुत पैसा खाते हैं, स्पेशली टैक्सेस, तो इनको आप जैसे भी बचा सकते हैं लीगली उसको बचाइए। कोई जरूरत नहीं है आपको हर एक एजेंट, वेल्थ मैनेजर, एडवाइजर, बैंक मैनेजर, रिलेशनशिप, बहुत सारे नाम से, और ये लोग आएंगे आपसे मिल लेंगे। बैंक मैनेजर को आपके अकाउंट के बारे में भी पता है, वो हमेशा आपको जब भी आप मिलोगे आपको एक प्रोडक्ट पुश करने की कोशिश करेंगे। और हर एक प्रोडक्ट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपने कार ले ली है, अब अगले महीने नई कार आ गई तो आप वो बेच के नई कार लेने नहीं जाते। आपको पता है ये अच्छी चल रही है अभी, तो 4-5 साल चलेगी, उसके बाद देखेंगे।
तो इसी तरह हर न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाना है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क आप खुद हैं, क्योंकि आप गलत टाइम पे पैसे डालेंगे, गलत टाइम पे निकालेंगे, गलत एडवाइजर लेंगे। डिफॉल्ट रिस्क, कंपनी डूब गई, और या फिर रिटर्न निगेटिव आया या कम रिटर्न मिला। आपने 20% एक्सपेक्ट करा था, 5% रिटर्न मिला, या -5% रिटर्न मिला। तो अगर आप अपने आप करना चाहते हैं, डू इट योरसेल्फ, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपको टाइम नहीं देना है, पढ़ना नहीं है, तो आप किसी एडवाइजर की हेल्प लीजिए। एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, विल एंड एस्टेट प्लानिंग, ये लोग नहीं करते हैं। बट जैसे ही आपने प्रॉपर्टी खरीदी, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, नॉमिनी का नाम होता है उसमें, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या है, डिस्प्यूट्स बहुत जल्दी होते हैं और ट्रांसफर मुश्किल होता है। अगर आपको डिस्प्यूट नहीं भी है तब भी ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी मुश्किल काम है, अगर विल नहीं है तो। एंड नॉमिनी इज नॉट द लीगल हायर, कि जैसे मैं हूं तो मेरी वाइफ को ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, जब अगर कोई क्लेम कर देता है तो फिर मुश्किल है, तो इसलिए बिल बनाना जरूरी है। सो थैंक यू, आई होप कि ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा आपको कुछ। तो कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करने को तैयार हूँ। थैंक यू। So thank you, Dr. Anand, and तो एक सवाल डॉक्टर अंदर आता है मेरे दिमाग में कि सपोज आप ये सब कर रहे हो उसको, तो हमें सेल्फ इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए या फिर किसी के एडवाइजर, जैसे होता है ना, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनकी हेल्प लेनी चाहिए? आप कंपेयर कर लो कि आपको अगर एडवाइजर कोई पहले से है तो बहुत इजी है। आप उसको निफ्टी 50, आप इंटरनेट पर डालिए कि निफ्टी 50 का लास्ट 10 ईयर का क्या रिटर्न रहा। अगर आज की डेट में उसका रिटर्न लगभग 14% है, तो अगर आपको 14% से ज्यादा वो रिटर्न दिला रहा है या 14% भी दिला रहा है तो ठीक है। अगर उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका एडवाइजर गड़बड़ है। ये 14% है, इसका भी कुछ होता होगा ना, कुछ शेयर उसका भी जो बंदा कर रहा है, क्या चीज? उस बंदे को शेयर भी होता होगा ना? हाँ, उनको कमीशन मिलता है, इसीलिए वो पुश करते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट पुश करते हैं जिसमें उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। तो आप आराम से, जो जैसे मैंने सजेस्ट करे, कुछ और भी म्यूचुअल फंड है, बहुत इजी है उनको करना। जैसे एक ट्रेंड लाइन करके वेबसाइट है, आप उस पर जाओ, रजिस्टर कर लो, साल का 1000 1500 कुछ फीस लेते हैं, लेकिन वो पूरी रैंकिंग देते हैं। तो आप टॉप सेकंड थर्ड रैंक में जो भी टॉप 3 में पसंद आ रहा है उसको ले लो, किसी की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बढ़िया जानकारी है, बहुत बढ़िया जानकारी इसलिए भी अच्छी लग रही है क्योंकि बिना पैसे के मिल रही है। ऐसा कम लेकिन होता कुछ है। कुछ जानकारी इस पे भी दो कि कैसे विड्रॉ करें पैसे। अब तो विड्रॉल वाला समय आ रहा है कि रिटायरमेंट के लिए कैसे विड्रॉ करें। रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग में तो बकेट स्ट्रेटजी होती है कि आप पहले 5 साल के लिए जो पैसे चाहिए वो आप निकाल के बैंक एफडी में या लिक्विड फंड में डाल लो और हर महीने निकालते रहो। उससे क्या होगा कि जो बाकी 2/3 पार्ट आपका बचा है वो आप ऐसे इन्वेस्ट करो इक्विटी में जिसमें वो बढ़ता रहे। अगर आपके पास 5 साल के पैसे है तो आप उसको छेड़ोगे नहीं, डर के मारे निकालोगे नहीं। सेकंड पार्ट जो है उसमें 50% इक्विटी में रहता है, 50% लिक्विड रहता है, वो अगले 5-7 साल के लिए। जो तीसरा पार्ट है वो 15 साल के लिए होता है, 15 साल से ज्यादा के लिए, वो आप प्रॉपर इक्विटी में रखिए। लंबे समय में इक्विटी बढ़नी है और वो आपको अच्छा रिटर्न देगी। वो इक्विटी में रखना है तो वो किस में, निफ्टी में या मिड कैप में? वो रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मिड कैप में रखना चाहिए, अदरवाइज सिंपल निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 सफिशिएंट रहता है। अगर आपको मतलब है 14% एक एक टैगलाइन है, 14% एक मार्क है, तो भाई 14% हाँ, से 12% एवरेज मार्क है, 12% से नीचे लॉन्ग टर्म में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
सिंपल है, आप गूगल पे सर्च मारो निफ्टी का रिटर्न। आ जाएगा उसमें। हाँ, और जो सेकंड बकेट है उसमें निफ्टी में रखना है या निफ्टी नेक्स्ट 50 में? दोनों में रखो, निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50। टॉप 100 कंपनीज हैं, वो तो कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है। हाँ, बाकी एक और डिटेल। सवाल डॉक्टर जी गुप्ता है हमारे पास जुड़े हैं, उन्होंने भी काफी रिसर्च करी है, तो कुछ सवाल है ये आपके पास पूछने के लिए हमारे डॉक्टर राजेंद्र से? नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, मतलब आई एंजॉयड दी टॉक सर। जी जी। थैंक यू। राजेंद्र, समय की शोध है, डॉक्टर से चलो समय नहीं है, कभी चलो वे एडवाइस रखते हैं, वो अपना मैनेज करते रहते हैं, SIP कर देते हैं बेसिकली, तो ये आप म्यूचुअल फंड रखो, SIP कर दो आप, हम्म। और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, देखते भी नहीं है अंदर, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने इसमें बहुत सारे डॉक्टरों का एनालाइज करा है, और 15-15, 20-20 म्यूचुअल फंड मेरे साथ भी ऐसे ही था। हम्म, तो आपके पास एक NSDL स्टेटमेंट आता है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप इतना टाइम तो निकालो 10 मिनट, उसमें 10 मिनट में आप सारा स्कैन कर लोगे, बड़े अच्छे से उन्होंने अरेंज कर रखा है। जी, और उसमें जो एडवाइजर है उसका कमीशन भी आता है। सब कुछ आता है मैंने बिल्कुल। फाइनेंस की पढ़ाई ऐसे ही शुरू करी, मैंने देखा कि एडवाइजर को कमीशन जा रहा है और मैं लॉस में हूँ। तो इजी है, और किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप जुड़ने के लिए, और बड़ा मजा आया, आपने बहुत ही कम समय में एक बेसिक्स आइडिया दे दिया हमको। बट हाँ, जैसे हमने बोला कि मतलब डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं और उनका नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो SIP वाला एक 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 SIP इज गुड, लेकिन वो म्यूचुअल फंड सही होने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है बट कि नया म्यूचुअल फंड अभी बस जैसे आया जी था कोई, तो बहुत सीनियर हैं सज्जन, अब उनके बैंक में पैसा होगा, बैंक वालों को पता है कि इनके पास पैसा है, वो हर दो छोटे नई स्कीम चाल चावल है, नई स्कीम लेके पहुंच जाते हैं, और चाल नहीं दोगी? सर को बेचारे को पता नहीं है, वो हर बार 5 लाख 7 लाख लगा देते हैं। वो तो तो हाँ हाँ वो ठीक सर है एक सर। चीज और थी। हाँ तो बता दे। तेरा मोटो है पतंजलि जी। रवि रवि म्यूट कर लो अपने आप को। रवि म्यूट करो। एक चीज थी सर, हाँ इसमें इसमें जो भी आपने बताया सर, ये सब तो वाइट के बारे में बताया ना सर। जी। तो हमारे हमारे इसमें जो ग्रुप में है ना सर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हाँ जिनकी वाइट की जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो तो कम है सर, और ब्लैक की ज्यादा है। सर, मैं तो सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, मेरी सारी वाइट में है, और ब्लैक नहीं का नहीं सर, कुछ मैं इसलिए तो बचाया बता नहीं, रहा हूँ सर। गवर्नमेंट ने केवल एक रियल एस्टेट बचाया है, हाँ बाकी हाँ, आप कहीं खा मैं सकते वही मैं वही पूछना चाह रहा था हैं। हाँ कि जी, रियल एस्टेट के अलावा और क्या कर सकते हैं सर ब्लैक में? कोई ऑप्शन नहीं है सर, क्योंकि नहीं है गवर्नमेंट ना? की ट्रैकिंग बहुत तगड़ी है। आपको शायद इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, LNT की एक कंपनी है, वो सोशल मीडिया पे नजर रखती है। हम्म। तो अगर अभी पिछले साल कुछ 12 यूट्यूबर को नोटिस मिला था इनकम टैक्स से। हम्म। वो फोटो खिंचा रहे थे दुबई में और बड़ी कारों के साथ, तो उनको नोटिस आया था आपके पास इतनी कारी कारें हैं। वो कोड भी करते हैं कि भाई हमने ये ट्रेडिंग से ये कार खरीद ली, और या बिजनेस सिखा के ये कार खरीद ली, और ये मेरा फ्लैट है और ये 10 करोड़ का है। तो उनको इनकम टैक्स का नोटिस आ गया था, सिर्फ सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट करा था। तो अभी बहुत ज्यादा एवेन्यूज बचे नहीं है, मतलब जितनी मुझे नॉलेज है। तो रणवीर, प्रॉपर्टी में कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट? सपोज ब्लैक मनी, तो उसका भी एक पार्ट होगा ना, दिस पार्ट यू कैन इन्वेस्ट, कुछ वाइट भी देना पड़ता है ना इनको? हाँ, वो तो अलग अलग शहरों में अलग अलग है। फ्लैट में कई जगह, जैसे मैंने सरकारी फ्लैट लिया, उसमें 100% वाइट था, तो मेरे लिए इजी था। नहीं राइट। तो फिर आप। और एक बता दो, लैंड तो देते हैं, लैंड में कुछ चलता है ब्लैक मनी, कुछ हम कर सकते हैं उसको? क्या चीज? लैंड में, लैंड परचेज में। हाँ, लैंड परचेज, हाउस परचेज, इन सब में ही चलता है। तो इसीलिए लैंड के रेट कम नहीं हो रहे ना, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, आप लोग तो क्या ही करते होगे, जो सरकारी लोग करते हैं, तो 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, वो सारा पैसा रियल एस्टेट में आ रहा है, इसीलिए रियल एस्टेट बिल्कुल। प्राइस कम नहीं होने के। ठीक है, हम लोग तो हॉस्पिटल में से एक बार सब कुछ चेक से हाँ, होता है नहीं, पेमेंट, तो आप लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होगा कुछ अभी। हमारे पास कुछ है नहीं सर। तो नहीं सर, जिन लोगों के पास 200-300 करोड़ है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करते सर, वो तो हाँ। कहीं वो तो और इन्वेस्ट करते हैं। मैं तो छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ सर, हाँ, मतलब जो अरे कि नहीं टॉप सर, मतलब प्रैक्टिकली। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कैश का, मुझे एक ही आइडिया है कि रियल एस्टेट में आप कर सकते हो बस। डॉक्टर राजेंद्र जो है उसमें प्रोफेसर है रेडियो डायग्नोसिस में, और मतलब पूरा 100% वही आता है, लेकिन ये है कि
एक सवाल आता है डेफिनेटली कि कैसे आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आई थिंक रियल एस्टेट में ज्यादा ऑप्शन छोड़े नहीं है, क्योंकि आपको गाड़ी खरीदने में पैन देना है, 2 लाख से ज्यादा गोल्ड खरीदोगे तो पैन देना है। आप 5 स्टार होटल में जाओगे, आपका आधार लगता है, आधार इज लिंक टू द पैन। आप फ्लाइट टिकट बुक कराते हो, वहाँ आधार दिखाना पड़ता हो, आपका आधार पैन से लिंक है। तो गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है कि आप कौन सा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। ये जो गोल्ड के बारे में बता रहे थे, जैसे गोल्ड में भी कुछ एक साल या अभी 3-4 महीने में काफी हाँ हाइक हुआ है, तो हाँ, क्या हाइक रहेगा, प्रोसेस करेगा कि नीचे भी आ सकता है? नीचे भी आ सकता है। शांति आएगी तो नीचे आ जाएगा, जब तक लड़ाई झगड़ा रहेगा तब तक ऊपर रहेगा। क्योंकि गोल्ड इज द रियल करेंसी। बाकी जो करेंसी है वो तो गोल्ड के अगेंस्ट कुछ भी नहीं, पेपर ही है, नंबर्स ही है। अच्छा, नरेंद्र, एक हमारे पास क्वेरी आती है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली मैं करता नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी के एक लिमिटेशन ये है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मतलब मान लो मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूँ, तो हमें तो ये पता है कि रिलायंस की फैक्ट्री गुजरात में है और उसके पीछे धीरू भाई या मुकेश अंबानी है। बिटकॉइन में कौन बंदा है उसके पीछे है, कहाँ अगर पैसा डूबा तो मैं किसको कंप्लेन करूँ। गवर्नमेंट ने बोला है आप टैक्स दो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आपके पास कोई कंप्लेनिंग राइट्स नहीं है। म्यूचुअल फंड में गड़बड़ होती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, शेयर में गड़बड़ होती है आप कंप्लेन कर सकते हो, रियल एस्टेट में भी डेटा बना दिया आप कंप्लेन कर सकते हो। तो बिटकॉइन उनके लिए है जिनको थोड़ा सा डोपामीन बूस्ट चाहिए, तो वो अपना ट्रेड करते रहते हैं। सो मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं ज्यादा उस पर बोल नहीं सकता, बट मैं एडवाइस नहीं करता। चलो, तो थैंक यू नरेंद्र, आप जुड़े नाम से, कुछ चैट में आता है तो फिर डेफिनेटली मैं ठीक। आपके पास आऊँगा। तो ना हम लोग ने बात की थी फाइनेंशियल हेल्थ की, अब बात होती है फिजिकल हेल्थ की। सो हमारे साथ जुड़ गई हैं नुपुर गुप्ता। ये मेरी मुलाकात हुई थी एक बार, एक यूपीडे की कॉन्फ्रेंस की थी मैंने एज एन ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, और एक वर्कशॉप भी की थी हमने। तो इनसे मिला था मैं, और बहुत ही बेसिक्स के बारे में उन्होंने बात करी थी, और इतना अच्छा बताया कि मतलब मैं तो बोला कि नहीं, इनको जरूर अपने प्लेटफॉर्म बुलाना है। तो नुपुर आई हमारे पास में, और इससे हम कुछ जानकारी चाहेंगे। नुपुर, आपका कुछ स्लाइड है कि मैं आप ऐसे ही 1-to-1 करेंगे? आप अनम्यूट कर लो नुपुर, अनम्यूट कर दो आप। colleagues and skill doctors and हाँ, कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं है डॉक्टर, ऐसे ही बात करेंगे। स्लाइड है क्या आपके पास? नहीं, स्लाइड नहीं है। स्लाइड नहीं कर पाए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी दूर से आ रही है कुछ। ओके, मैं थोड़ा सा और पास आके बोलती हूँ। हाँ फर्स्ट हाँ, ऑफ ऑल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। थोड़ी आवाज़ आपकी अच्छी आई तो अच्छा लगेगा कि ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है और बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आएगी ये, ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू डॉक्टर पंकज एंड ईस्ट दिल्ली एसोसिएशन कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। एंड टुडे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई एम गोइंग टू गाइड द मेंटर्स और टू एजुकेट द एजुकेटर्स, बिकॉज आई बिलीव सबको सब पता होता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए गलत है। एंड guys toast इनका समाय गरम we know the importance of health. And, आपको भी पता है कि what is the importance of a health for an individual. You are the, I believe all are doctors over here, right? all the doctors, yes, yes. हाँ, so doctors आप तो life saviors है, आप improve करते हैं quality की life, your passion, your skills, your knowledge helps in diagnosing and treating the disease, and you improve the, you prevent and improve the quality of a life. You play a very good role, a great role in the society. So, but due to your hectic schedule, your long working hours, your stress environment, आप भूल जाते हो अपनी health को prioritize करना, right? तो आज मैं आपको some practical tips share करूँगी जिससे आप अपनी health को maintain कर सकते हैं। So number one, I will say कि you should prioritize the nutrition. Nutrient को prioritize करें। जब भी आप अपना meal plate design करें, तो choose for the complex carbs. Number one thing, complex carbs include our whole grain sources like whole grains, आपके millets. Second thing is choose for the lean protein sources like eggs, lean meat, non-fat dairy products. Third, add
healthy fats in your diet like Mufa and Tufa oils, and add more of vegetables and fruits in your diet. So when you are planning your plate, just divide your plate into 4 sections. So first half for the cooked vegetables, second 1/4 portion should be for the salad, third portion should be of protein, and the last one for the complex carbs, and include one source of healthy fats in it. So अपनी प्लेट जब भी आप खाना खाएं तो जस्ट चेक ये सारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर. So this is going to help you in providing the nutrition to your body. Second thing, so because of long working hours आप अपने meals को skip कर देते हैं. So don't skip your meals. उसके लिए आप पहले से ही meal planning कीजिए and try to have a small frequent meals. Like मैं आपको कुछ examples देती हूँ कि आप fruit ले सकते हैं, dry fruits and seeds अपने पास रख सकते हैं, coconut water, छाछ, सत्तू drink, आजकल तो chia seeds water, गोंद कतीरा water, these all things are available and बहुत ज़्यादा common है ये चीज़ें, everyone knows. तो these are the small meals जो कि आपको help करेंगे आपका nutrition आपका balance करने में, and बहुत जो आप long gap आ जाता है meals को उसको भी avoid करने में आपको help करेगा. Third things, because of hectic schedules आप breakfast skip कर देते हैं, जो generally मेरी बाकी doctors वगैरह से भी बात होती है, to rush to the hospital, they are in a hospital जल्दी जाना होता है या clinic पहुंचना होता है तो अपना breakfast skip कर देते हैं. So we always advise कि never skip your breakfast. Breakfast का मतलब ही यही होता है कि आप overnight fasting को break कर रहे हैं. So take a healthy breakfast. It should be the best meal of the day. जिसके अंदर protein source होना चाहिए, complex carbs होने चाहिए. So always try to have the breakfast. So and next thing is hydration. So maintain your hydration level and always do slow eating. छोटी बाइट लीजिए, एक बाइट को आई नो हम पहले कहते थे 32 times chew करना चाहिए, but that is not possible. But at least try to chew your bite for 15 या 20 times and then swallow it. इससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है एंड हम ओवर ईट भी नहीं करेंगे. जब भी आप स्लो ईट करेंगे तो ओवर ईटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज जो एक स्टमक और ब्रेन का कनेक्शन होता है इट टेक्स 20 मिनट्स. तो एक नॉर्मल हेल्दी बैलेंस प्लेट को फिनिश करने में आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे. So this is a wonderful way. We called it mindful eating. We always do slow eating and always eat without distraction. Usually हम लैपटॉप देखते हुए या मोबाइल पे बात करते हुए खाना खाते हैं, तो उस प्रैक्टिस को अपना स्टॉप कीजिए. While eating, your whole focus should be on your food. तभी आप उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को एंजॉय कर पाएंगे. And if you have the time, post meals always try to do the walk. जैसे आपके 3 major meals हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. 3 major meals के बाद हाफ एन आवर का गैप लीजिए और उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए. ये बहुत हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा. एंड अगर आप नाइट वॉक करते हैं डिनर के बाद तो आपका स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव करता है. And the last thing I will say कि avoid more of sugary drinks, packet food. आप सबको पता है कि क्या डिसएडवांटेज है अगर हम ज़्यादा पैकेट फूड लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें लेते हैं, how it's going to affect our health, right? And the last one I will say the portion is the main key to all the things. Whenever you are eating, always control your portion size. वो तभी होगा जब आप meal planning करेंगे and small and frequent meals लेंगे. अगर मील प्लानिंग नहीं करेंगे, लॉन्ग गैप्स आएगा, तो देन यू विल एंड विद अ बिंज ईटिंग, जिसमें आप रॉन्ग फूड चॉइसेस को पिक करेंगे और ज़्यादा खाएंगे. सो आपका वो डिस्टर्ब करेगा मेटाबॉलिज्म. Thank you for guiding me for this question. बात आती है रिगार्डिंग जैसे लोग स्किप करते हैं मील, जैसे आपने बात करी, स्किप डोंट स्किप इट. फॉर समटाइम्स के भाई लंच का टाइम मिला नहीं है, चलो डिनर कर लेते हैं, डिनर का टाइम मिला तो लंच कर लेते हैं. तो व्हाट डू यू से, सपोज कोई टाइम नहीं है हमारे पास, तो व्हाट ऑप्शंस वी हैव? उसी के लिए आपको पहले मील प्लानिंग करनी होगी.
For that you have to do the meal planning. जब तक आप meal plan नहीं करेंगे तब तक आप उन चीज़ों को carry नहीं करेंगे. तो keep smart snacking options with you. Fruits and salad is the one option. And in summers we have lot of drinks. Coconut water is there, sattu drink is there, छाछ is there, and roasted snacks like roasted चना हो गया, मखाना हो गया. तो in the snacking we always recommend कि आपका प्रोटीन और फाइबर सोर्स होना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ कार्ब सोर्स. तो आप रोस्टेड चना प्लस एप्पल ले सकते हैं, या एप्पल के साथ आप पीनट बटर कंबाइन कर सकते हैं. वेजिटेबल स्टिक्स के साथ आप हमस ले सकते हैं. ग्रीक योगर्ट, क्योंकि समर्स इज अ वंडरफुल सीजन, आपके बहुत सारी ऑप्शंस होती है. तो आप ग्रीक योगर्ट कैरी कर सकते हैं. आप उसको मॉर्निंग में ले जाइए एंड प्रिजर्व कीप इट इन द फ्रिज एंड आप डे टाइम में उसको एंजॉय कर सकते हैं. You can make the गोंद कतीरा drink, बहुत कॉमन है आजकल, सारे इंस्टाग्राम रील्स पे आपको मिल जाएगा. So these are the smart snacking options जो आप कैरी कर सकते हैं अपने पास, so that जो आपका मील स्किप हो रहा है या लॉन्ग गैप आ रहा है आपके मील्स पे, आप उसको अवॉइड कर पाएंगे. राइट. तो कोई सवाल किसी का अगर आ रहा हो तो बात कर सकते हैं. मैम मुझे ये पूछना था, आजकल बहुत वो जोर शोर से चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 आवर फास्टिंग, और मे बी यंग एज में इट इज ओके, बट वी आर नाउ क्रॉस्ड 50 इयर्स ऑफ एज. तो इज इट एडवाइजेबल, या टोन कम करने के लिए और क्या सजेशन है? नहीं, देखिए, इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा एक सर्टेन विंडो होती है कि जैसे 8 to 16 फॉर द 8 hours you are eating and for the 16 hours you are fasting. So results are good. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. प्लस स्पेसिफिकली डूइंग फॉर द वेट लॉस, बट वो रिजल्ट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि आप उसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे. फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन यू आर गोइंग टू फॉलो. या तो आप उस रूटीन को परमानेंटली अडाप्ट कर लीजिए, तब तो वो रिजल्ट्स आपके मेंटेन रहेंगे. बट फॉर अ डायबिटिक पर्सन या एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इफ यू आर हैविंग, देन इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि एकदम से शुगर लेवल्स हाई होते हैं फिर क्रैश होते हैं. एंड कई बार ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हम स्टार्वेशन पीरियड में होता है तो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन लेवल हो जाता है, या आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हो, राइट. So, being a nutritionist, I never advise that one should go for the intermittent fasting. थैंक यू मैम. तो क्या करना चाहिए मैम टोन कम करने के लिए? आप एक हेल्दी अपना एक लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए जिसके अंदर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले, एंड प्लस डू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी इन योर रूटीन. 30 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक इंक्लूड कीजिए अपने डेली रूटीन में. देखिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छा कनेक्शन है. फिजिकली आप एक्टिव होंगे तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड हार्मोन्स जो कि आपके मूड, आपका स्ट्रेस लेवल कम रखेगा, आपके मूड को रेगुलेट करेगा. सो ट्राई टू इंक्लूड एंड फिजिकल एक्टिविटी जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपको रूटीन में आपके उसमें टाइम मिले. एंड जहाँ भी आई थिंक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करनी चाहिए जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. लाइक अगर देयर 2 ऑप्शन के स्टेयर्स है एंड लिफ्ट है तो always use stairs. And if you have a long working hours, so after every 1 hour, try to move for a 3 minutes or try to walk 3 minutes या 5 minutes के लिए walk कीजिए. This will help you in maintaining your health. मैम थैंक यू. डॉक्टर मक्कड़ आ गए हैं. डॉक्टर मक्कड़ कुछ पूछे जाएंगे डॉक्टर. हाँ, मेरा एक सवाल है. थैंक यू डॉक्टर पंकज. मेरा एक सवाल है मैडम कि अगर हमें जैसे प्रोटीन खाना होता है और प्रोटीन की कहते हैं कि मात्रा एटलीस्ट 1 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से होनी चाहिए, और तो एक पेशेंट तो नहीं, अगर किसी नॉर्मल आदमी को भी अगर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो उसकी अगर एवरेजन 70-80 किलो वजन है तो 70-80 ग्राम प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? क्या अच्छे सोर्सेज हैं? एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेजिटेरियन. तो जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है प्रोटीन सोर्स निकालना. तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट करें जो प्रोटीन सोर्सेज वेजिटेरियंस के हों जो कि 70 to 80 ग्राम्स पर डे के हिसाब से वो पूरा कर सकें. हाँ राइट. देखिए, वेजिटेरियन डाइट में होते तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं. आपके स्प्राउट्स हो गए तो आप उसके अंदर मिक्स बीन्स आप कंबाइन कर सकते हैं. आपके होल ग्रेन्स प्रोटीन सोर्सेज होते हैं. एंड टोफू हो गया, पनीर हो गया,
एंड सत्तू ड्रिंक हो गए, आपके मिलेट्स हो गए, आप अपने डाइट में मिलेट्स को इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. दे आर द गुड प्रोटीन सोर्सेज इन प्लेस ऑफ अ व्हीट और अ राइस. राइस के ऑप्शन में यू कैन गो फॉर द ब्राउन राइस थिंग, and you can include dry fruits and seeds in your diet. They are also the good source of protein and fat. And for the milk, I will say कि go for the non-fat, मतलब non-fat dairy products. Low fat आप use कीजिए dairy products. डॉक्टर मक्खन राव का एक जवाब आ गया आपके पास? हाँ जी मैडम, थैंक यू थोड़ा सा मुझे इशू हमेशा से यही रहता है कि जब भी हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए बड़ा कम सोर्स होता है तो बड़ा मुश्किल होता है. बट आई विल ट्राई टू फॉलो जो आपने अभी बताया. हाँ, बस try to just कि उनको ये गाइड कीजिए कि जब भी अपना कोई मील ले तो उसके अंदर एक प्रोटीन सोर्स को ऐड कर ले, क्योंकि देखिए एक बार में तो वो नहीं फुलफिल होगा ना. अगर दे आर टेकिंग 5 मील्स इन अ डे, तो इन ईच मील दे शुड ऐड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, चाहे वो नट्स से या चाहे वो होल ग्रेन से आ रहा है, चाहे वो मिलेट्स एंड दाल को कंबाइन करके ले रहे हैं, और दे कैन ऐड टोफू और अ पनीर इन देयर डाइट. बट इन ईच एंड एवरी मील वो अपना 15 to 20 ग्राम्स प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करे, तभी वो पूरा होगा. और ये ना कुछ सप्लीमेंट करने के लिए प्रोटीन, क्योंकि अगर पूरा नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग नहीं खा पाते, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट जो आते हैं क्या वो ले सकते हैं? एंड इफ यस, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट क्वांटिटी टू बी टेकन एवरी डे? हाँ, देखिए मेडिकली जो अप्रूव है प्रोटीन वो इनटेक कर सकते हैं. अगर उनका थ्रू डाइट या दे हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, अपना मील प्लान नहीं कर सकते, तो दे कैन गो फॉर द सप्लीमेंट थिंग. बट ओवर कंजम्पशन ऑफ सप्लीमेंट्स नहीं करना है. कई बार होता है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे जो यंग अपना जेंसी जनरेशन है, दे आर गोइंग टू द जिम एंड वो अपने ट्रेनर के कहने पे 1 स्कूप या मॉर्निंग या इवनिंग में अपनी डोसेज इंक्रीज कर लेते हैं. वो नहीं करना चाहिए. आपको उनको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपना इनटेक इंक्रीज करना चाहिए. जी, थैंक यू. नेचुरल सोर्सेज ही ज़्यादा बेटर होते हैं. Any other questions? थैंक यू मैडम, थैंक यू. ओवर टू यू डॉक्टर पंकज. मेरे ऊपर एक सवाल आता है हमारे पास कि चलिए एक प्रोटीन की बात करते हैं. आजकल ये चल रहा है, मिलेट्स का चल रहा है सर, एंड आई थिंक काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मिलेट्स पे काम कर रही हैं. तो व्हाट हम लोग मिलेट्स का यूज अपने डाइट में कैसे कर सकते हैं? आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मिलेट्स, एंड मिलेट्स को हम अपने मील्स में चपाती की फॉर्म में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. आई वुड प्रेफर कि मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स की जगह हमें एक सिंगल मिलेट को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए. मल्टीग्रेन चपाती को यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे आप 1 डे आप रागी चपाती लो, सेकेंड डे आप चना चपाती लो, थर्ड डे आप ज्वार चपाती लो. इससे हमें ज़्यादा वेराइटी मिलती है एंड एक कंप्लीट 1 मिलेट का हमें न्यूट्रिशन मिलता है. तो एक चपाती एक फॉर्म है जिसमें हम मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में. एंड सेकेंड थिंग इज मिलेट्स को उपमा फॉर्म में, पुलाव फॉर्म में हम या खिचड़ी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में. नॉट नेसेसरी कि आपको तीनों मील्स में आपको मिलेट्स लेने हैं. आप अपने 2 मील्स में लाइक ब्रेकफास्ट या डिनर में मिलेट्स ऐड कर लीजिए, या लंच एंड डिनर में ऐड कर लीजिए, इन चपाती फॉर्म और इन उपमा या पुलाव फॉर्म. आजकल बहुत रोस्टेड स्नैक्स भी आने लग गए हैं, रागी चिप्स या ज्वार पफ्स, जो ये होममेड बेकरी शॉप्स होती हैं. आपको सब जगह ये चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी. ये मिलेट्स के चिप्स हो गए, पफ्स हो गए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट पे. दैट इज़ अ गुड स्नैकिंग ऑप्शन. लेकिन जो सोर्स आप ले रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए जहाँ से आप वो बाय कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो लोग यूज करें मल्टीग्रेन, वी डोंट यूज मल्टीग्रेन, वी यूज ओनली वन इंग्रेडिएंट ऑफ दैट. देखिए मल्टीग्रेन में सारे मिलेट्स मिक्स हो जाते हैं, एंड थोड़ा सा डाइजेशन में भी कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें. एंड एक पर्टिकुलर लाइक इफ वी टॉक अबाउट द रागी, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन. अगर हम कंप्लीट रागी मील, रागी चपाती को लेंगे तो हमें रागी का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा. अदरवाइज मल्टीग्रेन में तो वो बड़ा स्मॉल कॉम्पोजिशन हो जाता है उसका. So we always advise to eat 1 millet at a time. मिलेट्स को हमेशा वो चपाती अगर ले रहे हैं तो उसको ग्रीस करके ही ले, ड्राई चपाती ना ले. बिल्कुल सर. तो वी मिक्स आटा विद मिलेट एंड
not audible, Dr. Pankaj. मिलेट को आटे में मिला के हाँ जी, नॉट नेसेसरी कि आपको उसको व्हीट फ्लावर में मिक्स करना है. उसकी अगर आप फ्रेश चपाती भी बनाते हैं तो बहुत इजीली बन जाती है. बहुत बेसिक के बारे में बता दिया पर करने काफी एक बार पॉइंट Dr. Pankaj, for some reason your voice is breaking a lot. I think. I'll use this. Now it is audible, ना? Yeah, perfect. Perfect. Great. तो एक काफी बेसिक कॉन्सेप्ट दिए नुपुर आपने एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम लोग जो डाइट जो मील स्किप करते हैं एंड व्हाट आर द हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस दैट वी हैव. So I think we should use in our busy schedule and don't skip the meal and take frequent small meals if it's possible. And plate system जो होता है हम लोग नॉर्मल प्लेट सिस्टम बात करते हैं कि भाई फाइबर्स में चाहिए उसमें प्रोटीन में चाहिए then keep complex carb avoid normal carb होते हैं उसको अवॉइड करेंगे आपको. Regarding Simple carbs and refined carbs. कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो कभी पार्टीज में आते हैं अल्कोहल लेते हैं इसको तो अल्कोहल के बारे में कुछ गाइड करिए हमको. देखिए आज सबको पता है कि अल्कोहल का पोर्शन साइज कितना होना चाहिए. राइट, अगर आप ज्यादा कंज्यूम करें तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हैम्पर योर हेल्थ. सेफ लिमिट है सेफ लिमिट किसी आपकी किसी न्यूट्रिशन उसमें गाइडलाइंस में. हाँ जी, so for a male it's a 90 ml मतलब 2 pegs and for a female it's a 1 we recommend. And plus always take the alcohol, go for the low calorie sources like मतलब बियर में कैलोरी ज़्यादा होती है. अगर मैं नॉर्मल फूड बोलूँ तो अगर हम विस्की लेते हैं उसमें कैलोरीज कम होती है एंड उसको शुगरी ड्रिंक्स के साथ कंबाइन मत कीजिए, वाटर के साथ लीजिए प्लेन. मतलब जो डाइट कोक्स एंड हम और कोल्ड ड्रिंक्स में ऐड करके लेते हैं उसको अवॉइड कीजिए, प्लेन वाटर के साथ लीजिए. एंड along with that 90 ml per day or 90 ml per week? पर week Per week, that's good. एंड उसके साथ हमेशा स्नैक्स जरूर लीजिए एंड ऑप्ट फॉर अ हेल्दी स्नैक्स. डोंट गो फॉर द फ्राइड थिंग. आप सैलेड ले सकते हैं विद अ गुड प्रोटीन सोर्स लाइक टोफू हो गया, एग हो गया, आपका पनीर हो गया. अभी कुछ दिन पहले WHO एडवाइस आई थी बिल्कुल कि even a single drop is hazardous for health, right? So yes, there are different bodies that have different guidelines, right? And आज हम देख रहे हैं कि alcohol की वजह से we are having high incidence of cancers also, like pregnancy also, right? Especially females में breast cancer से काफी incidence हो रहा है, especially in US जो डेटा आया है हमारे पास. तो yes, मतलब हर चीज करो लेकिन मॉडरेशन में करो तो आई थिंक बेटर रहेगा. एंड आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी बताया कि डेफिनेटली एवरीथिंग मॉडरेशन इज द की. Physical activity is also very important and we should indulge in physical activity. We are starting and we should start right 40 minutes brisk walk or do some resistance exercises as well. So thank you Nupur for your guidance and कभी physical meeting होगी तो मैं बुलाऊंगा जरूर आपको, ठीक है? हम लोग मीटिंग होती रहती है डीपे की. I'll just call you up, right? Thank you Nupur for joining us and अब हम लोग physical health से हटके हम लोग आते हैं mental health पे and we have none other than Dr. Gaurav Goyal with us. He is medical expert and professor of forensic medicine at Venkateshwara Institute of Medical Sciences at Arizona. And बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने साथ और हम साथ रह भी हैं 4 दिन माउंट आबू में. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तो गौरव हम कैसे हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं मतलब हजल फसल से डेली के जो उससे. तो क्या होता है कुछ टाइम है पास के किसी भी टाइम पे या कुछ स्पेसिफिक कुछ टिप्स होती हैं वो देना चाहेंगे regarding our mental health? So thank you, Dr. Pankaj. After a good session by Dr. Rajendra and Nupur madam, so really nice learning tips that we guys had. So as far as taking out time for our spiritual growth and our overall mental health, the beauty of I've been into meditation for almost 15 years now. And the beauty of, although there are so many, more than 100 forms of meditation known to mankind, but the one we've been practicing is called Raj Yoga meditation. And as the name implies, Raj Yoga means
it makes you it makes you perform Raj, that is you become a king of your senses. Whatever we are, जो भी हम pleasure seek करते हैं, whether it is alcohol or it is all through our five senses, whether through visual pleasure or through the pleasure of taste, skin, or smell or feeling. No, these are the things that whether we are watching a lot of mobile, TV, or listening to good music, or doing whatever activity, it is all through the five senses. So the entire challenge is how to control those senses. And with the meditation that we practice, Raj Yoga, it makes us the king of the five senses. So intentionally, or we don't have to try to do anything good to control the senses. It comes automatically. That is the beauty. And as far as the time, we don't need to take out time. It is a process that happens. We want to learn it for a few days, and then it becomes a habit. Just like you're driving a cycle, you're driving a car. You are not intentionally thinking about doing this activity, but it keeps happening at the spinal level. Similarly, at the level of the brain, this meditation keeps happening, and you can perform all the activities. For example, if I'm attending this webinar, it's not that I've forgotten everything else. I'm meditating in my mind as well as I'm listening to whatever is happening in front of me in the webinar. If I'm consulting patients, I'm examining a patient, I'm talking to somebody on phone. And if I'm a little bit conscious about that habit, that meditation is happening in my mind, I can perform it at any time, except of course during sleep. At all times that I'm awake, I perform this meditation, and I'm empowering myself with the power of meditation. And I use that power for all my activities. First of all, to heal my own self, my family, my friends, whoever is in front of me, I'm talking to, I'm thinking about. Or most importantly, for us as doctors, I can use this energy to heal my patients. The treating is something, and healing is something else. Healing is, as we believe in the higher power, we always say, I treat, he cures, or he heals. So it is his power, that supreme being's power, that higher power that we utilize, and we concentrate in ourselves, and we use it to heal our patients, which is obviously a bonus above the treatment that we are through medication or our advice that we are offering to the patient. So with time, it comes automatically. And it is also called Sahaj Yoga. Raj Yoga is Sahaj Yoga. That means it is very, very simple to learn, use, and perform for everybody. And yoga here basically means connection of myself as an entity of energy to the highest form of energy, that is the supreme being, the higher power, because he's the source of all the energies in the world, right? Of course, only the good energies, not the bad energies. Bad energies are created by us as souls. The higher power creates only good energies. So he's the source of infinite energies. So we use his energies to heal ourselves and to heal our patients and virtually everybody around us. So this is how, although the thing that I'm talking might look very abstract or, unreal, but it is very, very real. I've been, using these powers for 15 years now, and I use it on a daily basis, every day, every hour, every minute, to see the results of these energies around me. And they're very, very practical. And they're like, I call it like instant coffee. They work immediately. We see the results almost immediately. So Dr. Pankaj, this is how, and this is like, central to all the philosophy of all energies that you might use, whether it is Raj Yoga meditation or any kind of, it is all a play of energies. So now it's become a habit, and it gives me lots of energy even till the end of the day. I can do like, whatever, always kind of ready to do anything that way. Dr. Pankaj, where is everybody? Sleeping now? Alcohol? डॉक्टर गौरव, मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर गौरव, डॉक्टर मक्कड़ बोल रहा हूँ। तो आपकी Yeah, बात I can hear you. Yeah.
आपकी बात पूरी समझ में आ रही है, लेकिन उसको मतलब इम्बाइब करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि the way we have been brought up as doctors, we are told to believe in science and everything, and everything is evidence. Kind of बट breaking your ये voice. जो आपने हाँ. हायर पावर और ये सब बताया, इसको थोड़ा सा तो मेरा कहने का मेरा जो क्वेश्चन जो है आपसे, What is the scientific basis? को अडॉप्ट करने के लिए जो आपने इंटरनल मेडिटेशन बताया, नहीं साइंटिफिक बेसिस पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हैं, तो इसको पहले वी हैव टू cut every cord and then believe in it, like it's like a blind jump into it, leap into this faith, and then you understand the reality of this, embedded into this. So, thank you, Dr. Makkar. So, we are all people of science. I'll say, as a doctor or a person of science, I'll not believe into any crap. Okay. It is a basic fact, yes. Secondly, this play of energies that we've been practicing, it's been there for almost 87 years now. And as far as the scientific, I'll talk about the science first, then practicality. So we have about 78 published papers in national and international journals on the use of Raj Yoga meditation. In fact, I've been the instrumental person from Mount Abu headquarters who has collated this in the form of a book. And all these publications, मेरे भी अपने उसमें 3 हैं, हमने अपने यहाँ भी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च किया था. And all these prove one thing, that these energies cause a lot of physiological changes in the body. By even certain some studies prove at the level of ECG, EEG, not only physiological but biochemical changes as well. So all these collated, they are responsible for taking care of a lot of parameters of our physiology as a human being. That is one. But the second part is how to imbibe it. One has to learn, and it is not at all about rote. If I were to talk about slight background of this, it is एक होता है भक्ति मार्ग जिसको हम कहते हैं, उसमें सारा होता है रोट प्रैक्टिस. You cannot question anything. और अगर आप हम उनसे पूछते भी हैं अपने पंडित जी से, या जो भी एक पर्सन प्रीच कर रहा है कि भी ये क्यों करते हैं, ठीक है, ये जो ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं, हम नित्य कर्म कांड कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, नेति नेति, nobody knows. But this entire philosophy of Raj Yoga meditation is all about knowledge and knowledge. It is all based on logic. You can ask any number of questions. There is no taking away any iota of doubt that arises in the mind. And there are many doctors, hundreds of thousands probably doctors all over the world practicing Raj Yoga, and virtually every field. Now we are more than 10 crores all over the world. In India mein hi baat kare, there are more than 5-6 crore people who are practicing Raj Yoga meditation daily. And as far as imbibation is concerned, one has to learn for a few days. And the best thing about doctors is that doctors have a questioning mind. We are people of science. We ask a lot of questions, and there are answers to virtually every question that we have. And the biggest example we give is, do not believe after sharing all the knowledge. It is all about sharing the knowledge. Do not believe anything I'm saying. You practice it yourself. You try it out. You go and try it out, everything in the world. But do not put a cross over something new that your friends or colleagues or somebody else has practiced. If you do not find any result, throw it away. But these, as I always say, they work instantly, and they give you instant peace, happiness, and energy. These are the underlying, principles of this.
If it doesn't work, Fascinating. obviously it started with one person in 1937. There would not have been crores of people, and it is something. It is totally based upon logic and knowledge. And the best thing that appeals to the mind of a person of science or a doctor is knowledge, the answers to all the questions about ourselves as a being of energy, about the higher power. Yeah, you ask, what is the proof of higher power? What is the proof that I am a being of energy? I say, do not trust me, whatever I'm saying. You try it yourself for a few hours or a few days. You will know for yourself what is these energies about and how they help you. Dr. Makkar. Fascinating, sir. Fascinating. Absolutely amazing. In You know, fact, we Dr. need to Pankaj learn was, more. we were together for 4 days at Mount Abu, and he has become a total fan of these energies, Raj Yoga Right. meditation. And in fact, Dr. Mumtaz Sahu, my batchmate, also there with us for the same Mount Abu trip, and it was Hello fascinating to. everyone. Mamta, what was your experience at Mount Abu? Just tell us, right? Look, my experience was amazing, but you know, to keep on experiencing that energy and that moments, you need to be, you know, in touch. It's like, you know, you have to revise your subject daily. It's like you have to practice more often, feel that energy. But yes, it feels good, genuinely, and you become light. Things remains the same, the situation remains the same, but how you deal, how you encounter, how you know, approach them, and how you take it, that difference it makes the Raj Yoga meditation. तो गौरव एक बात आती है मैं समझ में जैसे हम लोग थे ब्रह्म मुहूर्त होता है कि जैसे 4 बजे के आसपास होता है एंड डेफिनेटली डॉक्टर्स एक्चुअली काम से आते हैं क्लिनिक से देर से आते हैं और आपने बोला कि ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं तो मतलब आपका वे ऑफ प्रैक्टिस हम लोग के टिप्स क्या है हम लोग कि कब कर सकते हैं कितना देर कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी तो है ना डॉक्टर गौरव हमेशा रहेगी एनर्जी उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसको बिकॉज स्ट्रेस है डेफिनेटली मतलब अगर कोई पेशेंट हमारा सिक है तो डेफिनेटली स्ट्रेस हमारा रहेगा उसको पेशेंट्स हैं हमारे तो उसमें स्ट्रेस रहेगा हमारा तो इससे हम ये देख रहे हैं स्लीप डिप्रिवेशन भी आ रहा है और स्लीप जो स्लीप होती जो नेचुरल स्लीप होती है वो भी नहीं हो पा रही है तो क्या हम इस प्रैक्टिस करके क्या हम अपने जो हमारा स्ट्रेस को और अपने स्लीप पैटर्न को चेंज कर सकते हैं डॉक्टर गौरव Oh, yes, very much. In fact, there have been a couple of studies on sleep also, rather, I would say on relaxation of the mind proven through scientific studies that have been published. So as Dr. Mamta was saying, see, it is about, daily practice, one, to start with. It is like, there is food for the body. This is food for the soul, and soul will need its, powers daily. So you have to do it daily, and once you start practicing it, you know that you feel that energy inside you, and you can focus it and use it for your own self or even for your own patients to heal. For sleeping, I would say my experience is very good. I used to take a long time to sleep. Now if I lie down and I want to sleep, I can go to deep sleep in seconds. This is how it helps. It has been the experience of almost every Raj Yoga practitioner if they've been regular in practice. Very sound sleep and sleep latency is also taken care of very nicely, and you get good sleep without any disturbing dreams. If the dreams are there, either they are not there or they're pleasant dreams. So that is a practical application of this, that you can not only begin to have a good your degree stress is taken care of very easily, and your sleep habits become good, your digestive system becomes good. Needless to say, we've got published studies which prove that you can manage your diabetes, your hypertension, and mental illnesses. डॉक्टर गौरव चले गया
तो ममता आप कैसे करते हो प्रैक्टिस, आप बताओ अपने बारे में। देखो, मेरी अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मैं बहुत ऑफन नहीं जा पाती हूँ सेंटर, बट जैसे बोला गया है that मतलब what that याद की यात्रा, it's like you have to keep on remembering Shiv Baba, and then you have to think जैसे going to जो उनको याद करने का तरीका, मैं बहुत इलेबोरेट इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि नॉट एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग द सेम. डॉक्टर गौरव नो, सो मे बी ही विल अंडरस्टैंड बेटर. सो तो ये है कि आप फ्रीक्वेंटली, इट्स लाइक आप फ्यू सेकंड्स का भी मेडिटेशन कर सकते हो टू रिचार्ज योर सेल्फ. जो सुबह 4 बजे उठने वाली बात बोली, वो मेरे को बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगी. मैं उठती थी सुबह में, और फिर पूरे दिन अगर आप नहीं सो पाते हो तो फिर आप शाम तक, हमें इवनिंग क्लिनिक करना होता है, एनर्जी नहीं रहती है करने की. तो मेरी स्लीप बहुत कम हो गई थी, फिर मुझे हेडेक्स होने लगे. तो कभी अगर उठ जाती हूँ तो फिर कर लेती हूँ, फिर वापस सो जाती हूँ. बट अगेन दैट्स नॉट द राइट वे. सो वन साइज नेवर फिट्स ऑल. सो जैसे जिसको कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से दे कर सकते हो, दे कैन डू इट. तो गौरव, हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, हम लोग बात करते हैं कि मेडिटेशन कर लो. जैसे पेशेंट आता है, भाई तुम लोग स्ट्रेस में, मेडिटेशन कर लो. अब ये नहीं बताते कि क्या कर लो, राइट? सो जैसे हमने बोला राजयोग मेडिटेशन है, या नॉर्मली लोग कहते हैं योगिक मेडिटेशन होता है, कुछ लोग बोलते हैं. जैसे सहज योग की बात करी आपने, जैसे वो निर्मला देवी का जो सहज योग होता है. सो क्या इसका जो फिलॉसफी होती है, उसकी साइंस होती है सब योग की या मेडिटेशन की एक ही होती है कि हर की डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी होती है? डॉक्टर? So the philosophy of all these meditation is different, but they are all meant to play with energies and use energies for self healing and for healing of others. And mostly the principles are same, but the process of attaining the same is different for all. Right. Now, when we talk to a patient ki theek hai meditation kar lo, we mean that whatever suits you best, you do that what you've been doing. If they want to perform Hanuman Chalisa or some Aarti or whatever, you go ahead, whatever gives them peace, because that is the acute stage, and in acute stage, most of these things would not work for a beginner. For a patient, whatever suits them, whatever gives them peace, even if temporarily, we recommend that. But when the healing process starts, when they have enough time and outlook towards learning, then we train them into learning Raj Yoga meditation, which they can use for self-healing and take it ahead. That is the idea. And as far as Brahm Muhurat is concerned, Dr. Mamta rightly said that yes, one size may not fit all. What the idea is that is the best time, but that doesn't mean that is the only time. You can do it at any time of the day. It all depends upon how nicely you're trained and how seriously, or rather I would say consciously or sincerely, you are performing this so-called Yat Ki Yatra, or connection of the being with the supreme being, and you attain those powers. You can do it at any time of the day. You can do it at the second good is evening time at around 7 o'clock for half an hour. In the morning you do it for 45 minutes. 4 to 4:45 is the best time. And if you look at Guru Granth Sahib, you look at so many other religions, Buddhism, many religions also share the same philosophy, that Brahm Muhurat is the best time to attain the energies for self-healing, followed by, you can do it anytime virtually. I like to do it many times during the day. If I'm not able to do sometimes at the Brahm Muhurat, I do it before every meal for 2-3 minutes. So at least 3-4 times I'm able to do it. Sometimes somebody is very sick, talking about a patient. I give him 2 minutes or 3 minutes of meditation powers, and they feel very relaxed immediately. And sometimes they come only ke doctor sahab, theek hai, healing, we are better. Just give me 2-3 minutes or 5 minutes of meditation powers. I'll feel very relaxed. So I've come to you especially for that and not for any treatment as such. तो दूसरा सवाल डॉक्टर गौरव में आता है आपके पास कि one is self meditation and one is guided meditation. Sometimes the person who knows how to meditate, they can sit with the person and then they
do a guided meditation, and one is self meditation. So how for doctors, because sometimes we can't go for guidance, right? And we have to do yourself. So any gadgets we have that we can help them for the guided meditation for us? Oh yes, plenty. So the self meditation, guided meditation, basically there are stages. You start with guided meditation with a teacher of Yeah. Raj Yoga. So I, for example, if I'm acting as a teacher, I would guide my patients or somebody, my colleague or a friend or a relative, for a few days or weeks or months. Then once you learn it, you can do the same thing for your own self meditation. So, and there are lot of videos and audios available on YouTube or YouTube Music also, with visuals, with background instrumental music, with a lot of devotional songs also. So you just have to search Raj Yoga meditation music or Raj Right. Yoga guided meditation Yes, sir. commentary, and you'll have plenty of videos and material available to start with as a process. Then you can go ahead if you are more interested about changing your, because see, this spirituality or so-called meditation, it is not about simply healing, or it is a personality it is a way of living. It is not abstract as people say spirituality is abstract. It is a way of living. It is simple. It is not only meditation is one small part of the entire. It is entire outlook towards life in general. As Dr. Mamta said, it is you cannot do anything about the society or the problems, but what you can do is your effect on this, how you react to it in so many different situations. Situations will always remain throughout the life, but how you handle them and you maintain your level not only from peaceful but into a blissful stage. और एलोन मस्क तो हमेशा एक हाइपोमेनिया मेनिया स्टेज में रहता है, बट वो तो प्रॉब्ली शायद ड्रग्स वगैरह करता होगा, बट वी डोंट नीड अल्कोहल और एनी सपोर्ट सिस्टम. We can live in a elated or stage or blissful stage throughout our life with the help of meditation. Right. That's great. हाँ, इसका मैं ये कहती हूँ ना कि I get high without alcohol. Exactly. Right, right. 100%. Nothing, Dr. Gaurav, मजा आ गया वो आपसे तो बात करके मजा आता है. Thank you. But मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, because we are medical practitioners and as you said that you guide your patients also. So when I came into practice, a few years back, so I was very pro कि भाई तुम ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करो, it's very good. But सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता. जो मुझे अच्छा लगता है not necessarily अगले को भी अच्छा लगे. And there are so many myths about different groups and all. So मेरा ये suggestion रहता है, you explore Brahma Kumaris, you explore Art of Living, you go to ISKCON. तुमको जो अच्छा लगे, लेकिन कहीं तो जाओ, कुछ तो अपने आप को change लाओ और वो positive change लाओ. So I always give them 2-3 options, because it shouldn't sound that I am pushing them in one direction. है ना, and everyone has their own calling, because मैं भी 2-3 जगह होकर के तब पहुंची थी ब्रह्मा कुमारी. The way, मतलब जो idea हमारा बनता है कि we should attach to some spirituality, मतलब इतना सब stress जो हम लोग देते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर हम लोग towards spirituality जाएंगे, और ये बहुत मुश्किल नहीं है हम जानते हैं. Dr. Pankaj, EDPA will save lots of money on alcohol if everybody is having lots of happiness through spirituality. You will stop serving alcohol in our CMEs and parties. सच में बिल्कुल बिल्कुल खर्चा बच जाएगा. Yeah. तो ये बात भी करेंगे ना, नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा यही है कि कैसे हम लोग इस तरीके के अपने आप को छोड़ सकें. कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं भाई कौन सा ब्रांड है, तो भी जाएंगे हम. Or Dr. Pankaj, if I were to share very briefly, in mental illnesses, we've seen, for example, we've got 2 centers here in Dilshad Garden, which are bank opposite EBHAS and GTB Hospital and Swami Dayanand, 3 hospitals in the line. And EBHAS se to, there are so many patients who come to us. And the biggest example we have is, there was a 30-year-old girl who was taking antidepressants for the past 16 years. She must have been 14 when she started.
And after performing Raj Yoga, in 2 months, she stopped all the medication. Now it has been, she's around 44, 45 now, as I'm speaking now. And she's totally off medication and enjoying a very productive life now. And for mental illnesses, I've seen, not this is one example, many patients who got rid of their medication totally. Obviously this has to be done under the supervision of the psychiatrist as well as the Raj Yoga meditation teacher. Not that we recommend anybody ki meditation seek lo dawai band ho jayenge. Of course it works, but then it has to be individualized. Yes. I think thank you Dr. Gaurav, टाइम हो गया हमारा, तो हमने काफी कुछ सीखा हमने from financial health to nutrition part and the mental health, और तीनों चीजें important है. लोग बोलते हैं भाई पैसा नहीं तो पीस कहाँ से आएगी, मतलब उसके लिए पैसा चाहिए फॉर मेंटल पीस, राइट? और मेंटल पीस होगा तो डेफिनेटली हम स्पिरिचुअलिटी तरफ जाएंगे इसको. तो मेरा तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है. राजेंद्र, आपका क्या मतलब इसमें वो है, बिकॉज आप एक कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हो और आप बहुत सेल्फलेसली काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई पैसे की लिमिट नहीं कोई, राइट? एंड ऐसा नहीं जो बहुत पैसा कमाते हैं वो हैप्पी भी हैं सर, ठीक है? सो आपकी जो परिभाषा थी, आपने जैसे बताया था वेल्थ की परिभाषा, बड़ा अच्छा लगा कि वेल्थ की परिभाषा क्या है. सो बस एक लाइन चाहूँगा आपसे एज अ क्लोजिंग रिमार्क, कि मतलब कि व्हाट शुड बी अ लिमिट, राइट? जैसे मैं बात करते हैं भैया लिमिट, जैसे भाई पीछे एक गाड़ी हो गई, बच्चा अपना मेडिकल स्कूल चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया आपका, और आपके पास एक अपना फ्लैट हो गया आपका, तो क्या यही हमारे डॉक्टर्स की लाइफ है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है? बियॉन्ड तो हम डॉक्टर से बात की थी हमने, आपकी नज़र में क्या है वेल्थ? जैसे बस लास्ट एक क्लोजिंग कमेंट दूंगा आपसे राजेंद्र. मुझे लगता है कि ये वेल्थ इज लाइक एन एनर्जी. आप अगर सोसाइटी में कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, मान लो आप 10 पेशेंट को फ्री करते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं आप तो 1000 पेशेंट को आप फ्री कर सकते हैं. तो मेरा मानना है कि जो अच्छे लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए. सही करें, नॉट स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम अर्निंग. अगर आपके लाइफ के गोल्स पूरे भी हो गए हैं तो आपके बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, स्टिल आप जो कुछ भी कर रहे हो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर कंट्री. राइट. मतलब लिमिट हो, लिमिटलेस हो, जो लोग लिमिट आप डिसाइड करो, वो आप डिसाइड कर सकते हो. हाँ, मतलब एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबको चाहिए ही, लेकिन आप इस वजह से कि लोग कह रहे हैं कि जी आपके पास बहुत पैसा हो गया अब आप बंद कर दो कमाना, दैट इज रॉन्ग. आपको लगता है कि नहीं बस मुझे हो गया तो दैट इज इनफ, तो इनफ. एंड डेफिनेटली वी शुड ट्राई फॉर रिटायरमेंट आल्सो. आपने बड़ा अच्छा बात बोली विल की, जो अपने बोलते हैं, जो हम लोग नहीं करते हैं चीज़ों को, और बिल तो करनी चाहिए मेरे ख्याल से, और ये लीगली भी इम्पोर्टेंट है. और डॉक्टर गौरव, आपका क्या विचार है जो? Oh yes, very much. This is a traditional feeling. डॉक्टर राजेंद्र ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया ये, और हम तो खैर लीगली एडवाइस करते भी हैं. दिस नॉमिनेशन फॉर चाहे पीपीएफ अकाउंट हो, आपका एनपीएस अकाउंट है, बैंक एफडीज है, सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और इवन फॉर प्रॉपर्ट, ये ऑल दीज नॉमिनेशन, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज चैलेंजेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वेरी इजीली सो. So there is nothing bigger than a registered will. एक होता है अनरजिस्टर्ड विल, भी एक अलग से आपने लिख के दे दिया किसी को, 2 विटनेस साइन करके, दैट इज ऑल्सो चैलेंजेबल. सो इट शुड बी प्रॉपरली, जैसे एक हम प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं, उसी तरह से विल का भी प्रोसेस होता है. यू गो देयर इन द रजिस्ट्रार ऑफिस, यू गेट इट ड्राफ्टेड नाइसली, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम ए सिमिलर पर्सन. वही लोग जो विल बनाते प्रॉपर्टी के लिए कराते हैं, वही लोग विल बनाते हैं, और उसको यू गेट इट रजिस्टर्ड. दैट इज द ओनली थिंग दैट इज अनचैलेंजेबल. एनी अदर डॉक्यूमेंट अदर देन दैट इज इजीली चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और हम तो गुड फेथ में छोड़ के जाते हैं कि ठीक है, हमारे जो एयर हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको मिल जाएगा. बाद में बड़ा घमासान युद्ध होता है, भाई भाई में हो जाता है, और ऐसे भाई बहनों में हो जाता है, पूरी जिंदगी ना हुआ हो. So I am sure not more than 5 out of 100 DTPA members would have a registered will. मैंने अपना बनाया 3 साल पहले, first time. Everybody should on a priority have it tomorrow itself. Will is very very important. So we ignore it. हम आपसे गाइडेंस लेंगे इस बारे में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने बताया, राजन ने इसको हाईलाइट किया था इसको. और I'll be happy to submit a format, okay, blank उसमें spaces करके
you fill in the blanks, go to the nearest person who prepares property sale deed और उसको बोलो मेरा will register करा दो. 1 हफ्ते के अंदर ये कराओ, because life is very uncertain. और you do not know कि हमारे बाद कि कितने घर में लड़ाई होगी हमारे पीछे. It is to avoid everything that we should have a will. अभी जो हादसा हुआ मतलब हार्ट फॉर्मिंग हादसा हुआ जो अहमदाबाद में, सर देखिए मतलब पूरा प्लेन क्रैश हो गया. उससे मतलब कितना मतलब सेटबैक हुआ, मतलब कि मतलब लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. अभी वॉर चली, पाकिस्तान इंडिया वॉर हुआ, चलो रुक गई, लेकिन यू नेवर नो बॉस के कैसे इस तरह इंसिडेंट आ जाए. तो आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल आवर दिस थिंग्स वाइसली. सर मैं बोलता हूँ जैसे हम लोग वाइसली इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग करते हैं, ऐसे हम लोग को आगे भी सोचना पड़ेगा उस चीज़ को. So I think with this we end this meeting, and इसको हम YouTube पे हम लोग पब्लिश करेंगे इसको. And I think it's very important for all of us to get, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी, but join to definitely. नुपुर अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि we can have a group photo. Swati, you can also do that. हम लोग जर्नल निकलता है उसमें एक फोटोग्राफ डालेंगे, ठीक है. नुपुर आप भी कर लो, आप अपना कैमरा ऑन. Yeah, that's great. I am in a cab right now. कोई बात नहीं, उनका कोई बात नहीं. कहाँ जा रही है कैब से? मैं लखनऊ जा रही हूँ अभी. मैं स्टेशन पहुँचने. हाँ पापा ठीक है अभी? मतलब काइंड ऑफ बेटर बट स्टिल इन हॉस्पिटल. अब जाके देखते हैं क्या करना है. Thank you very much for joining, and definitely we'll meet sometime again. Thank you, Dr. Gaurav, Dr. Rajendra. Thank you. And Thank you. You are always good and very nice. I joined very late. अगर कुछ रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज शेयर कर लेना. मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग. We have a YouTube channel, उसमें मैं भेज दूंगा. लिंक भेज देना उसका YouTube. शंभू रिकॉर्डिंग मत कर सकते हो शंभू आप, ठीक है. और इसको मीटिंग को रिकॉर्ड करके आप अपने जो चैनल पे डाल देना, तो विल शेयर इन द ग्रुप. Swati, we can come to the meeting right now. I thank you all for all the wonderful inputs. It was a very, very interesting talk, especially Dr. Rajendra and sir, and Nupur and Dr. Gaurav Agarwal. Sir learned a lot today. Thank you. Thank you. Good night. Good night, everyone.